students, today we are going to solve the question of worksheet 6 of lesson 11. Lesson 11, perimeter and area. Now in this worksheet, the questions are related to find the area of circle. First, I want to explain you what is the meaning of area of circle. Here is a circle and this is called circumference of circle, that is boundary line. This is called circumference of circle, and the space enclosed by circumference is called area of circle, means total space it is bounded by the circumference is called area of circle. The formula of area of circle is pi r square, where pi is 22/7 if not given. If given, then you have to use the given value of pi. R is radius of circle. Now the second formula which you have to use is perimeter of semicircle. What do you mean by perimeter of semicircle? Perimeter of semicircle formula is pi r plus 2r. So first you know the perimeter of circle. Perimeter of circle is 2 pi r. Then what will be the perimeter of semicircle? 2 pi r divided 2. This is a semicircle. I have drawn a semicircle, a small semicircle. This perimeter of the semicircle is the length of this curve and the length of a diameter, means 2r. That is 2 pi r by 2. The length of this curve is 2 pi r by 2 because this is half of a circumference. 2 pi r by 2 plus 2r. 2r. And 2 will be cancelled, that is pi r plus 2r. This is the perimeter of semicircle. आप देखिए बच्चे हम perimeter of semicircle कैसे निकालेंगे. This is a semicircle. तो इसके लिए मैं पहले इसका लेंथ लेना पड़ेगा. इसका लेंथ क्या होगा? सर्कमफ्रेंस का हाफ, यानी कि 2 पाई आर का हाफ, 2 पाई आर बाई 2 एंड प्लस डायमीटर और 2r. तो ये 2 कैंसिल, पाई आर प्लस 2r. दिस इज पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ वर्कशीट 6. Using only few concepts you can solve the questions of worksheet 6. The question number 1 is find the area of a circle of diameter 8.5 meter. Here diameter is given. First you should find the radius. Diameter is equal to 8.5, radius is equal to 8.5 by 2, means 4.2. We know radius is half of diameter, that is 4.2. Area will be pi r square. Here I have written the formula area of circle is equal to pi r square. So area will be pi r square, and putting the value of pi 22/7 and the value of r is 4.2 meter. 4.2 multiply 4.2. And we will remove the decimal. We will divide the whole term by 100 of because after decimal there are 1 and 2 digits. 1 digit and 2 digits. So we will divide by 100. And solving we get 5544 upon 100. That is 55.44. यहाँ पे जब हम 100 है तो इसका पॉइंट को हटाएंगे तो 1 2, यहाँ 2 0 है, तो हम यहाँ पे राइट साइड से वी विल पुट द डिसिमल आफ्टर 2 डिजिट फ्रॉम राइट साइड. 55.44 meter square. That is area of circle. Now question number 2. The area of a circle is 616 centimeter square. Find its radius. यहाँ पे एरिया दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड द रेडियस. एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं. और एरिया ऑफ सर्किल क्या दिया हुआ है? 616 और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर. We know the value of pi is 22/7 and you have to find the value of r square. So put you have to find the value of r. So r is unknown. So we will write like this. And since we have to find the value of r, so we will first find r square. R square will be 616 multiply 7 divided 22. R square will be
7 multiply 7 multiply 4, that is 7 square multiply 2 square, 7 2 जा 40. यहाँ पे r स्क्वायर है, 7 स्क्वायर और 2 स्क्वायर. यहाँ पर अगर बेस को मिलाएं तो एक्सपोनेंट जो है हमारा क्या है, सेम है. यहाँ पे r स्क्वायर है, 7 स्क्वायर 2 स्क्वायर. तो हम लोग दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे. r क्या आएगा हमारा, 7 मल्टीप्लाई 2 डेट इज 40. ना क्वेश्चन नंबर 3, वेरी सिंपल. द एरिया ऑफ ए सर्कुलर लॉन इज 154 मीटर स्क्वायर, फाइंड इच सर्कमफ्रेंस. यहाँ पर एरिया दिया हुआ है तो पहले हम लोग इससे रेडियस निकाल सकते हैं और रेडियस निकाल करके हम लोग उस रेडियस को यूज करते हुए सर्कमफ्रेंस निकालेंगे. हियर एरिया इज गिवन, एरिया ऑफ सर्कुलर लॉन इज पाई आर स्क्वायर. एरिया इज गिवन 154 and we are putting the value of pi 22/7 and we have to find r because r is unknown. So r square is equal to 7 and r is equal to 7. Now easily you can find circumference by using this r. Circumference is equal to 2 pi r. 2 multiply 22/7 multiply 7 and we will get 44. Very easy question. Now question number 4. A circular plot is of radius 77 meter. The radius of a circular plot is given. Find its value at rupees 54 per square meter. यहाँ पे दिया ना 57 पर स्क्वायर मीटर. पर स्क्वायर मीन्स इसका एरिया. तो एरिया यहाँ पर उसको प्लेन करने का कुछ ये है, उसका कोस्ट दिया हुआ है ना पर स्क्वायर मीटर. तो उसका टोटल कोस्ट, अच्छा फाइंड इट्स वैल्यू, उसका जो प्लॉट है उसका कोस्ट दिया हुआ है पर स्क्वायर मीटर 57 रुपीज. तो इसका हम लोग एरिया निकालेंगे. ये जो हमारा रेडियस दिया है इस रेडियस को यूज करके सर्कुलर प्लॉट का एरिया निकालेंगे और उसको कोस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे प्लॉट का वैल्यू निकल जाएगा. फाइंड इट्स वैल्यू, उस पूरे प्लॉट का वैल्यू यानी पूरे प्लॉट का कोस्ट निकालना है. तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द एरिया. तो r इज इक्वल टू 77, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, डेट इज 22 by 7 मल्टीप्लाई 77 मल्टीप्लाई 77. r स्क्वायर मीन 77 मल्टीप्लाई 77 बिकॉज r इज 77. तो यू विल फाइंड द एरिया इज इक्वल टू 18,634. नाउ टोटल कोस्ट विल बी मल्टीप्लाई बाय 57. हम इस एरिया को कोस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कोस्ट पर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है. तो टोटल कोस्ट क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके यू कैन फाइंड इजिली द आंसर. दिस विल बी द कोस्ट ऑफ प्लॉट. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. द डायमीटर ऑफ 2 सिल्वर डिशेस. ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए हम लोग इसको थोड़ा आराम से देखेंगे कि दो जो है वो सर्कुलर डिशेस जो है सर्कुलर प्लेट है उसका जो डायमीटर का रेशियो है वो 2:3 है. तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एरिया. ये डायमीटर का जो रेशियो है वही रेशियो तो एरिया का हो जाएगा बिकॉज डायमीटर क्या है 2r. डायमीटर ऑफ 2 डिशेस आर d1 एंड d2. हम लोग इसको मान लेते हैं और रेडियस जो है वो r1 और r2. तो डायमीटर का जो रेशियो है d1 by dt इज इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है. एरिया ऑफ फर्स्ट डिशेस, फर्स्ट जो डिश है उसका एरिया क्या हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर, यानी कि पाई और r1 की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे डायमीटर बाई 2 d1 by 2 का होल स्क्वायर. और इस तरह से हमारा जो एरिया ऑफ फर्स्ट डिश क्या निकलेगा पाई d1 स्क्वायर पाई 4. सिमिलरली यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ सेकेंड डिश पाई r2 स्क्वायर पाई d2 by 2 स्क्वायर, डेट इज पाई d2 स्क्वायर बाई 4. एंड डिवाइडिंग you have to find the ratio. What will be the ratio of their area? Means ratio area of first dish divided area of second dish is equal to जो यहाँ पर फर्स्ट डिश का एरिया है और इससे सेकेंड डिश के एरिया को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे ऊपर में जाएगा पाई d1 स्क्वायर और डिवाइडेड 4. और फिर ये डिनोमिनेटर में आएगा पाई d2 स्क्वायर और ये 4 न्यूमिनेटर में 4 कैंसिल पाई कैंसिल. एंड एरिया का रेशियो क्या आया d1 by d2 का होल स्क्वायर है ना. d1 स्क्वायर बाई dt स्क्वायर मीन d1 by d2 का होल स्क्वायर, डेट इज 2/3 का होल स्क्वायर. और ये जो है वो क्या हो जाएगा 4/9. डेट इज रेशियो विल बी 4:9. दिस इज द रेशियो. नाउ क्वेश्चन नंबर 6.
Very quickly you have to solve the question number 6. If the perimeter of a semi-circular park is 72. मैं बोली थी ना कि एक हमारे इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो सेमी सर्किल के फॉर्मूले पर हैं, इसलिए मैं सेमी सर्किल का फॉर्मूला आई हैव रिटेन, मैं शुरू में इसको लिख चुकी हूँ. इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्किल सर्कुलर पार्क इज 72 मीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड रेडियस. तो यहाँ पे गिवन पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर पार्क इज 72 मीटर. वी नो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, आई हैव रिटेन ऑलरेडी. वी नो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल इज इक्वल टू पाई आर प्लस 2r. 72 perimeter is given 72 is equal to r will be common, then pi plus 2, 22 by 7 plus 2r. And solving you can find r. Solving you can find r, and r is equal to 14 meter. If you have found r, then you can easily find the area. Area is equal to pi r square by 2, because semicircle we know that area of whole circle is pi r square. For semicircle area will be half the area of pi r square. Or and putting the value of pi 22 upon 7, r square means 14 square by 2, and solving we get area is equal to 308 meter square. So we have found radius is equal to 14 meter and area is equal to 308 meter square. This is the answer. Now we are going to solve question number 7. If a wire of 440 meter length is molded in form of a circle and a square turn by turn. एक जो वायर है, ठीक है ना, उसका लेंथ दिया हुआ है 440 मीटर और उसको एक सर्किल के रूप में फॉर्म किया गया और उसके बाद एक स्क्वायर के रूप में. फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल टू दैट ऑफ स्क्वायर. तो पहले 440 मीटर लेंथ का जो वायर है वो जब एक सर्किल बनेगा तो ये पेरीमीटर का काम करेगा, जब ये स्क्वायर के रूप में बनेगा तब भी ये पेरीमीटर का काम करेगा. तो इन बोथ केस दिस इज गिवन द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ सर्किल. तो पेरीमीटर ऑफ सर्किल से हम इसका यूज करके, पेरीमीटर ऑफ सर्किल है 2 पाई आर, 2 पाई आर इज इक्वल टू 440 से पहले आर निकालेंगे और फिर स्क्वायर 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 440, इससे हम स्क्वायर का एक साइड निकालेंगे. और जब हम आर निकालेंगे इसका तो हम एरिया ऑफ सर्किल निकालेंगे और इसके साइड से हम एरिया ऑफ स्क्वायर, उसके बाद हम दोनों का रेशियो निकालेंगे. तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, वेरी सिंपल, बट थोड़ा सा बड़ा तो बनेगा ही. यहाँ पे क्या हम देखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ सर्किल 440, तो पेरीमीटर में सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 440, 2 पाई आर इज इक्वल टू 440. तो easily you can find r is equal to 440 by 2 pi, and putting the value you will get r is equal to 70 meter. Now area of circle, using the value of r you can find easily the area of circle. Area of circle is equal to pi r square, r means 70. Now area of circle will be 154 100, ठीक है. This is 15,400. Again perimeter of square is equal to 440 meter. One side is equal to perimeter divided 4, that is one side is equal to 110. Area of square is equal to side multiply side. Now ratio, यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज हमें रेशियो निकालना है. रेशियो निकालने में अगर ये हमारे फैक्टर्स में टर्म रहेंगे तो हमें कैंसिल करने में ईजी रहेगा. सो ये ट्रिक को आप बच्चे, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में ये ट्रिक काम आता है, तो इसको आप लोग सीखें कि हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. मैं यहाँ पे भी हमें मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, इससे हम डायरेक्ट ले लेंगे, है ना. ये तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्किल टू डेट ऑफ स्क्वायर, तो हम इसको नहीं लेकर के इसको ले लेंगे, इससे हमें कैंसिल करने बहुत ईजी रहेगा ना. तो ये हम लोग ले लेंगे 2200 मल्टीप्लाई 7 एरिया ऑफ सर्किल और एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए ये, और इस तरह से वेरी इजली ये कैंसिल होकर के 14 बाई 11 यानी 14 रेशियो 14:11, ये हमारा आंसर होगा. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8. हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 है. फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड in a circle of radius 8
सेंटीमीटर। मतलब एक स्क्वायर है जो एक सर्किल 8 सेंटीमीटर के अंदर में ऐसे इस तरह से आ जाए, है ना। इस इंस्क्राइब इन ए सर्किल, एक सर्किल के इनसाइड में इस तरह से स्क्वायर आ जाए। लेट ABCD इज स्क्वायर, यहाँ पे मैं फिगर बनाई हुई हूँ। ABCD एक स्क्वायर है विच इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है हमारा यानी कि BD हो गया वो 16 हो गया। रेडियस है 8 मीन्स OB इज 8। यहाँ पे आप लोग देखिए OB, ये OB जो है वो 8 है, ठीक है। तो डायमीटर BD वो 8 + 8 16 हो जाएगा। तो हमें ये यहाँ पे निकालना क्या है कि एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए हमें किसी भी तरह से वन साइड को जानना होगा। हम देखें कि लेट वन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। स्क्वायर का एक साइड हम लोग x मान, अगर एक साइड हमें निकल जाए तो इस स्क्वायर के एरिया क्या होगा x × x स्क्वायर। या तो हमें x स्क्वायर निकल जाए या x निकल जाए। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर, ठीक है। ये हमें निकालना है। अब हम लोग नाउ इन राइट ट्रायंगल ABD, यहाँ पर हम देखें कि ABD ये एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। ABD एक जो राइट ट्रायंगल है इसमें लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि x और x दो साइड्स हैं, जो बेस और हाइट, ये जो दो साइड्स हैं अदर देन हाइपोटेनस, क्योंकि हाइपोटेनस इसका क्या है BD है। हाइपोटेनस इज अपोजिट टू राइट एंगल, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड विच इज अपोजिट टू राइट एंगल। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि x² + x² इज इक्वल टू BD स्क्वायर, ये हमें पाइथागोरस थ्योरम से मिलेगा। x² + x² इज इक्वल टू BD मीन्स 16 स्क्वायर। x² ऐड करेंगे तो 2x² हो जाएगा और ये 16 × 16, तो x² ये 2 जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो x² इज इक्वल टू 16 × 16 डिवाइडेड 2। तो यहाँ पर x² का मतलब क्या है साइड, x क्या है x हम लोग यहाँ पर क्या माने हैं वन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू x, यानी कि साइड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सॉल्व करने पर 128। साइड स्क्वायर मतलब क्या है, ये एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 128। ये साइड स्क्वायर एरिया, ये एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड × साइड, तो ये क्या हुआ हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 128। तो इस तरह से ये हमारा आंसर है 128। Now we are going to solve question number 9. The diameter of a circular path is The diameter of a circular park is 24 meter. Diameter दिया हुआ है एक circular park का। A 3 meter wide path running all around it from inside. ये जो एक पार्क है इसका डायमीटर दिया हुआ है 24 और इसके इनसाइड में 3 मीटर, ये 3 को छोड़ दे तो एक इनसाइड में एक और छोटा पार्क होती है। मतलब ये जो पाथ बना हुआ है 3 मीटर का पाथ बना हुआ है, तो ये हमारा इनर सर्कमफ्रेंस आउटर सर्कमफ्रेंस ऐसे हो गया। तो रेडियस ये यहाँ पे फिर क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ एट ₹25 पर स्क्वायर मीटर। ये जो पाथ है इसका कॉस्ट बनाने का कॉस्ट निकालना है, इसको पेविंग करने का कॉस्ट निकालना है, जो कि है ₹25 पर स्क्वायर मीटर। मतलब सबसे पहले हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ पाथ। वेरी सिंपल, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एरिया ऑफ पाथ क्या होगा। ये बड़े सर्किल का एरिया हम निकाल लेंगे, ये जो आउटर सर्किल है उसका एरिया, फिर इनर सर्किल के एरिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरिया ऑफ पाथ निकल जाएगा। पहले मैं बताएं कि पूरे बड़े सर्किल में से छोटे सर्किल को काट के निकालें तो सिर्फ एरिया ऑफ पाथ बच जाएगा। तो बड़े सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा πr², और वहाँ पर r जो होगा हमारा 12 काम करेगा, यहाँ से यहाँ तक 12। और छोटे सर्किल के लिए r क्या हो जाएगा, ये 3, ये पूरा 12 है और ये 3 है, तो 12 - 3 है ना, 12 - 3 यानी कि 9। तो OA इज इक्वल टू 9, OA इज इक्वल टू 12 है, OA 12 एंड OB, यहाँ पर अगर हम लोग इसको B लिख दें, OB इज इक्वल टू 9 मीटर। तो एक बड़े सर्किल का एरिया हम लोग निकालेंगे यूजिंग द वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू 12 मीटर। आफ्टर देन वी विल कैलकुलेट द इनर सर्किल, द एरिया ऑफ इनर सर्किल यूजिंग द वैल्यू ऑफ R 9 एंड वी विल सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर मैं वही काम की हूँ, यहाँ पे πr² pi × 12 का होल स्क्वायर, और इनर सर्किल π
पाई आर स्क्वायर पाई मल्टीप्लाई 9 स्क्वायर, और एरिया ऑफ पाथ दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब यहाँ से पाई कॉमन ले लिया, मैं यहाँ पे पाई का वैल्यू नहीं बैठाया हूँ बिकॉज यहाँ पर अगर कॉमन ले करके हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें बहुत ईजी पड़ता है। मैं यहाँ पे पाई को कॉमन ले ली, और ये 12 स्क्वायर 144 माइनस 9 स्क्वायर 81, और ये पाई का वैल्यू अब यहाँ पे पुट करने पर ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाता है, चूँकि 144 माइनस 81 इज इक्वल टू 63 एंड 7 9 जा 63, एंड वी विल फाइंड द एरिया ऑफ पाथ 198। फिर हमें कोस्ट निकालना है, तो बस कोस्ट जो दिया है हमें उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से यू कैन फाइंड कोस्ट। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। इस वर्कशीट में बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे बट कॉन्सेप्ट को समझते हुए देखेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है उसमें ऐसा फिगर बना हुआ है, और ये क्वेश्चन क्या है कि PQRS एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर लेंथ है और ब्रेथ 7 सेंटीमीटर है, और इसमें से इस तरह से सेमी सर्कुलर 2 पीसेस काट लिए गए हैं। तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकालना है, वेरी इजी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर का एरिया निकालेंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 10, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 7, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ यानी कि 70। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये और ये सेमी सर्किल दो सेमी सर्किल का एरिया निकाल लेंगे और पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम लोग यहाँ पे देखें कि ये दोनों मिल करके एक सर्किल ही तो बन रहा है, ये सेमी सर्किल ये सेमी सर्किल। अगर इसको उठाकर मैं यहाँ पे रख दें तो एक सर्किल बन जाएगा हैविंग रेडियस 7/2। ये 7 तो डायमीटर है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 7/2। तो डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल क्या हो जाएगा 7, तो रेडियस 7/2। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल का क्या होगा, एरिया ऑफ ए सर्किल, 2 सेमी सर्किल मिलकर के एक सर्किल ही तो बनाएंगे। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर, पाई वैल्यू ऑफ पाई 22/7 और आर की जगह पर 7/2। हम लोग यहाँ पे आर जो निकाले 7/2 यूज़ करते हुए, और 38.5 सेंटीमीटर हमारा एरिया आया ये पूरे सर्किल का। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन जो हमारा यहाँ पे आया है एरिया रेक्टेंगल के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग इस एरिया को, और एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन हमारा निकल जाएगा। इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन नंबर 10 बना। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पोल विथ 21 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, फाइंड द एरिया वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज। यहाँ पर है कि एक पूरे ग्राउंड में, कहीं भी ग्राउंड में एक अगर खंभा में एक हॉर्स को बांध दिया जाए और उसकी जो रस्सी है उसका जो स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग का लेंथ अगर हम लोग 21 मीटर रख दें, क्वेश्चन ये है कि वो हॉर्स कितने एरिया का घास को ग्रेज करेगा, उस एरिया को निकालना है, वो कितने एरिया के घास को खा सकता है। तो ये यहाँ पे एक खंभा ऐसे गड़ा हुआ है, हम लोग माने ऐसे ग्राउंड में ऐसे एक खंभा गड़ा हुआ है और यहाँ पर एक हॉर्स को बांध दिया गया है, ठीक है। तो वो हॉर्स को क्या है कि 21 मीटर लॉन्ग यहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम, और ऐसे पूरा गोल घूम जाएगा, ठीक है। तो ये जो सर्किल गोल बनाया उसके अंदर तक वो मूव कर सकता है, यानी उसके अंदर के पोर्शन को वो ग्रेज कर सकता है, यानी कि यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्किल यूजिंग रेडियस 21 मीटर। द हॉर्स विल ग्रेज द एरिया ऑफ सर्किल हैविंग रेडियस 21 मीटर फॉर सर्कुलर रीजन r is equal to 21 मीटर, एरिया is equal to pi r square, very simple, and putting value of pi and r you will get the area is equal to 1386 meter square. Now question number 12. Two concentric circles have radii of 14 centimeter and 7 centimeter respectively. Find the area of space between them. Very simple, ऐसा क्वेश्चन तभी हम लोग तुरंत किए हैं। एक ऐसे सर्किल, कॉन्सेंट्रिक मीन्स ऐसे सर्किल जिसका सेंटर सेम हो, तो इसी तरह से बनेगा जो भी हम लोग एक क्वेश्चन पार्क वाला बनाए थे। तो ये एक आउटर सर्किल है जिसका रेडियस हुआ है दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर एंड for inner circle the radius is given 7 centimeter. You have to find the area of space between them. How can you find the area?
of space between them. You have to find the area of big circle, and then you will find the area of small circle, and you will subtract to get the area of portion between them. So area of big circle pi r square, area of small circle pi r square. I have written here capital R and small r for big circle and small circle. Pi will be common, pi r square minus r square, and substituting the value, pi is equal to 22/7, value of capital R is equal to 14 square, small r 7 square. 14 square means 196, 7 square means 49, and solving we will get the value of area of space between them 462. वेरी सिंपल, इसको सब्ट्रैक्ट करके इसको कैंसिल कर दें. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 30. Question number 13. The sum of circumferences of four small circles of equal radius is equal to the circumference of a big circle. Find the radius of the area of the bigger circle to find the ratio of the area of the bigger circle to that of the smaller circle. यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है कि ये जो स्मॉल सर्किल है, ऐसे ऐसे 4 स्मॉल सर्किल का सरकमफ्रेंस एक बिग सर्किल के सरकमफ्रेंस के बराबर है. मतलब सम ऑफ द सरकमफ्रेंसेस ऑफ 4 स्मॉल सर्किल इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ ए बिग सर्किल. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या है, यहाँ पे लिखेंगे कि लेट रेडियस ऑफ बिगर एंड स्मॉलर सर्किल आर एंड आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर. कैपिटल आर फॉर बिग सर्किल एंड फॉर स्मॉल सर्किल the radius is r. Circumference of big circle is equal to 2 pi r. Circumference of small circle is equal to 2 pi r small r. तो sum of circumference of 4 small circle, इस तरह से ये 4 small circle का circumference क्या आ जाएगा, 4 × 2 pi r. इसको हम 4 टाइम्स ऐड करेंगे ना, तो 8 pi r, इसको 4 टाइम्स ऐड करें या 4 से मल्टीप्लाई करें, तो क्या आ जाएगा 2 2 2 करके 8 pi r. तो ये क्या हुआ, 4 स्मॉल सर्किल का सरकमफ्रेंस. और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस ऑफ बिग सर्किल इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सम ऑफ 4 स्मॉल सर्किल. सरकमफ्रेंस ऑफ बिग सर्किल क्या है 2 pi r, और सरकमफ्रेंस ऑफ 4 स्मॉल सर्किल क्या है 8 pi r. अभी हम लोग निकालें ये और ये. अब हम लोग इससे r/r मतलब कैपिटल R बाई स्मॉल r का रेशियो निकाल सकते हैं. ये r है और इस r को हम लोग स्मॉल r को यहाँ ले आए और 2 pi को इधर ले जाए. ठीक है, तो क्या हमारा आएगा, कैपिटल R बाई स्मॉल r इज इक्वल टू 8 pi बाई 2 pi, और pi कैंसिल और 2 से कैंसिल करके रेशियो r का क्या आया 4:1. ना एरिया ऑफ बिग सर्किल, अब हमें रेशियो तो एरिया का निकालना है. एरिया ऑफ बिग सर्किल pi r स्क्वायर, एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल पाई r स्क्वायर. यहाँ पर कैपिटल R हम लोग बिग सर्किल के लिए यूज किए हैं और स्मॉल सर्किल के लिए स्मॉल r. तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ बिगर सर्किल टू स्मॉलर सर्किल, तो यहाँ पर जो बिग है और उसको ऊपर में रखेंगे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में स्मॉल, पाई कैंसिल r स्क्वायर बाई r स्क्वायर. और यहाँ पर हमारा r/r का रेशियो आया 4/1. तो यहाँ पर हम 4:1 लिखेंगे और ये स्क्वायर है. यहाँ पर मैं एक लाइन और यहाँ पे लिख देती हूँ कि इसको हम लोग लिख सकते हैं r/r का होल स्क्वायर. ठीक है, तो r/r हमारा क्या है 4/1 का होल स्क्वायर यानी कि 16/1. वेरी सिंपल. तो रेशियो क्या आया 16:1. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. द एरिया ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल with side 112 meter and 88 meter respectively. Find the circumference of the circle. यहाँ पे दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू, कोई एक सर्किल है जिसका एरिया क्या है इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर. रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है. तो सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और ये जो एरिया आएगा वो एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा. तो हमें इससे सर्कमफ्रेंस निकालना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल दिया तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालें. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारा 112 × 88.
और यही तो हमारा एरिया ऑफ सर्किल है, बिकॉज ये गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल भी क्या हो जाएगा हमारा 112 मल्टीप्लाई 88। अब एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ सर्किल का मतलब क्या है, हमें जो निकालना है सरकमफ्रेंस, उसके लिए हमें आर चाहिए। आर हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे आर स्क्वायर को ही छोड़ करके पाई को डिनोमिनेटर में लाएंगे और पाई का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो हमें आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, आर स्क्वायर इज इक्वल टू मिला 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर। वेरी सिंपल, इसको कैंसिल करेंगे तो आर स्क्वायर, इसको मैं आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, बट वेरी सिंपल है कि इसको अगर स्क्वायर के रूप में लिखे है ना, और फिर एक एक को जैसे आर स्क्वायर को अगर इधर भी सारे स्क्वायर के रूप में आए तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, एक एक को हम लोग ले सकते हैं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7, ये आया। हम इसको पूरी तरह से कैंसिल नहीं करेंगे। 100 जैसे 22 से 88 को कैंसिल किए, 4 आया, तो 4 मल्टीप्लाई 7। अब ये 112 को हम देखें कि 4 और 7 से बारी बारी मल्टीप्लाई करें, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ना, 7 4 जा 28, 4 जा 112। यार ये मैं लिखी हूँ 112 के लिए, 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4। ये जो मैं पूरा लिखी हूँ इसको मैं लिखी हूँ 112 के लिए, ये मिलके 112। ये ऐसा मैं इसलिए लिखी हूँ कि ये हमारा स्क्वायर के फॉर्म में है। तो अब ये हमारा क्या आ गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, ये 4 2 हो गया, ठीक है, ये और ये 4 हमारे पास 2 आ गया, 7 और 7 2, और एक 4 बच गया तो उसको हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 4 और ये 4 यहाँ पे लिख दिए, ये 7 और ये 7 यहाँ पे लिख दिए, और फिर लास्ट में जो 4 स्क्वायर हुआ उसको हम 2 स्क्वायर। इस तरह से 4 स्क्वायर 7 स्क्वायर 2 स्क्वायर, आर स्क्वायर। आर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, स्क्वायर सबका हटा देते हैं, 4 7 2 दैट इज 56। तो सरकमफ्रेंस ये हमारा आर आ गया। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई मल्टीप्लाई आर के जगह पर 56 यूज कर लेंगे, और इस तरह से ये 7 8 जा 56 और ये 352। So these are all the questions of worksheet 6 of perimeter and area. Hoping you have got benefit. इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चे, और मैं बहुत ही जल्दी बट कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए एक्सप्लेन की हूँ। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आप कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आपको दूर हो जाए। इसको बार बार देखें, और मैं इसमें कैलकुलेशन का थोड़ा सा ईजी तरीका भी बताऊँ कि हमें पूरी तरह से मल्टीप्लाई नहीं कर लेना है। जहाँ पर कैंसिल, जैसे यहाँ भी मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं की, चूँकि मैं जान रही हूँ कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में पाई लाना है, तो फिर ये डायरेक्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे कैंसिल करने में थोड़ा टाइम लगता है। सो दिस ट्रिक यू कैन यूज, एंड बाय यूजिंग दिस ट्रिक यू कैन सॉल्व क्वेश्चन वेरी इजली, और बहुत ही कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।